کیا ہوگا؟ فرمایا کل اے پیغمبر کہہ دیجئے ان صلاتی یقیناً میری نمازیں، و نسکی اور ساری کی ساری عبادت ہے، و محیای اور میرا مرنا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ آیت کا دوستو ترجمہ بالکل واضح ہے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کا اس زمین پر مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کا ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک ہفتہ یا ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ کی جستجو میں گزرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں، عبادت و بندگی کے اعلیٰ درجے پر کیسے پہنچیں، کیسے اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور اس کی جنت میں داخلہ حاصل کریں اور اس کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ سکیں۔ آپ دیکھیے صبح و شام کی جو اذکار ہیں، صبح و شام کی اذکار میں بھی اسی مقصد حیات کی یاد دہانی انسانوں کو کرائی جاتی ہے۔ ہم اگر صبح اٹھے بھول گئے اپنے مقصد حیات کو کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، شریعت نے کہا پڑھو اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ شام ہوئی ہم اپنے مقصد حیات کو بھول گئے، شریعت کہتی ہے پڑھو اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ ہم تیرے نام سے صبح کرتے ہیں، تیرے نام سے شام کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے نام پہ جیتے ہیں، تیرے نام پہ مرتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح میں آج رات کو سو کر ایک نئی صبح کی ہے، جس طرح آج میں اپنے بستر سے بیدار ہوا ہوں نماز فجر کے لیے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب ہم اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں پہنچیں گے، تیری عدالت اور تیرے دربار میں پہنچیں گے اور اپنی زندگیوں کا حساب دیں گے۔ صبح و شام کے اذکار پر آپ اگر غور کریں، صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم لوگوں کا ہمارا مقصد حیات یاد کرایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین پر کروڑوں مخلوقات پیدا کی، ان گن، اگر ہم گننے بیٹھے تو مخلوقات کو گن بھی نہیں پائیں گے۔ ان کروڑ مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے دو مخلوقات کو عظیم بنایا ہے۔ دو مخلوقات بڑی عظیم ہے۔ کیوں عظیم ہے؟ کیونکہ ان کا مقصد بڑا عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام مخلوقات میں سے جنوں کا انتخاب کیا اور انسانوں کا انتخاب کیا۔ کیا مقصد بنایا ان کا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے فرمایا یہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد، ان کو جو میں زندگی جیسی نعمت دے رہا ہوں، ان کو میں دنیا میں جو بھیج رہا ہوں، ان کی زندگیوں کا مقصد ہوگا عاجزی و انکساری، میرے لیے سجدے کرنا، میرے لیے قیام کرنا، میری عبادت و بندگی کرنا، یہی ان کی زندگیوں کا مقصد ہوگا۔ دیکھیے اللہ نے کروڑ مخلوقات بنائی، لیکن کسی کو اللہ نے شعور نہیں دیا، عقل نہیں دی۔ انسانوں کو اللہ نے عقل دی، جنوں کو شعور دیا، فکر سلیم دی، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں شعور و سمجھ کیوں دیا؟ تاکہ انسان حق و باطل میں تمیز کر سکے، انسان ہدایت و گمراہی میں تمیز کر سکے، انسان نیکی اور گناہ کے کام میں تمیز کر سکے، تاکہ انسان اللہ کے در کو چھوڑ کر مزاروں پر اپنی پیشانی کو نہ کہتے۔ اللہ نے ہمیں عقل اس لیے دی کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں، رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر سکیں۔ عقل رکھتے ہوئے انسان اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے کے در پہ جھکتا ہے، اللہ اکبر۔ عقل رکھتے ہوئے انسان حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اگر شعور رکھتے ہوئے، شعور کی دولت و نعمت رکھتے ہوئے انسان نیکی اور گناہ کے کام میں تمیز نہ کر سکے تو اس زمین پر پھر انسان سے گئی گزری کوئی اور مخلوق نہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ نے فرمایا ان کے پاس دل تو ہے پر یہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں پر حق ان کو دکھائی نہیں دیتا، ان کے پاس کان تو ہے پر حق کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اللہ نے فرمایا جن کی زندگیوں کا مقصد صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، جن کی زندگیوں کا مقصد کھانا ہے، پینا ہے، اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، جانور چوپائے ہیں جو نمازوں سے دور، دین سے دور، مسجدوں سے دور، رب سے بغاوت کر کے، رب کو ناراض کر کے زندگی گزارتے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، جانور ہے یہ جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا زجر توفیق کیا تو لوگوں کی، فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، جن کی زندگیوں کا مقصد کھانا اور پینا ہے، جن کی زندگیوں کا مقصد
मुस्तकबिल के हवाले से उम्मीदों के ख्वाब देखना है, इन्हें छोड़ दीजिए, ये खाते और पीते हैं और मुस्तकबिल के हवाले से ख्वाब देखते रहे। कल कयामत के दिन मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि इनकी जिंदगियों का मकसद क्या था। फरमाया वयअकुलून कमा तअकुलुल अनआम, जिनकी जिंदगियों का मकसद खाना और पीना है, बस खाना और पीना। अल्लाह की नाफरमानी, दीन क्या चीज है नहीं जानते, नमाजें क्या चीज है नहीं जानते, रोजे क्या चीज है नहीं जानते, शरीय अहकामात के बारे में। अल्लाह ने फरमाया ऐसे खाते हैं जैसे चौपाई खाते हैं, ये ऐसे खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं। वन्नार मस्वल लहुम, मैदान महशर में जब ये लोग मुझसे मुलाकात करेंगे, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम की आग होगी, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम की आग होगी। लोगों हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा करके आए उसकी इबादत का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको मकसद हया याद दिलाया था दुनिया में देखने से पहले। उठाइए सूरह आराफ और 9वां पारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम की पीठ से तमाम रूहों को निकाला था, एक मैदान में जमा किया था, मैं भी था और आप भी थे। उन रूहों में वहां पर हम सब लोग थे और हम सब लोगों को जमा करके अल्लाह ने हमारा मकसद याद दिलाया था कि दुनिया में क्यों भेज रहा हूं। अलस्तु बिरब्बिकुम, सूरह आराफ के टुकड़े को देखिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ दुनिया में तो भेज रहा हूं तुम लोगों को, दुनिया में जा रहे हो, बताओ किसकी इबादत करोगे, बताओ किसके लिए सजदे करोगे, बताओ किसको अपना खालिक को मालिक मानोगे, बताओ मेरे दर को छोड़कर कहीं दूसरे के दर पे अपनी निशानी को थोड़ी झुकाओगे, बताओ बताओ किसकी इबादत करोगे। हम सब ने एक जगह होकर कहा था कालू बला शहीदना, अरे अल्लाह क्यों नहीं, जमीन पर जा रहे तो इबादत सिर्फ तेरी होगी, बंदगी सिर्फ तेरी होगी, अरे अल्लाह ये पेशानी तेरे दर के अलावा किसी दर के ऊपर नहीं झुकेगी। हम सब ने एक जगह होकर वादा किया था। अल्लाह ने यहीं पर बस नहीं किया, फरमाया अन तकूलू यौमल क़यामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, फरमाया कि कल कयामत के दिन जब मुझसे मुलाकात करोगे तो बहाना नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों के पास, कहीं ऐसा न कहने दो कि अल्लाह हम उस वादे को भूल गए थे, जो इबादत और बंदगी का वादा किया था भूल गए थे। अल्लाह ने फरमाया इस वादे को याद दिलाने के लिए मैं नबियों को भेजूंगा, आसमान से किताबों को उतारूंगा। अल्लाह की कसम, आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने नबी आए, इन नबियों की बेसत का मकसद उसी अहद अलग को याद कराना है जो अल्लाह से इबादत का वादा करके आए हैं। आसमान की जितनी किताबें नाज़िल हुई, इन तमाम किताबों के नुज़ूल का मकसद उसी वादे को याद दिलाना है जो अल्लाह से इबादत का वादा करके आए। लोगों अपनी तारीख पढ़ो, तारीख उठा के देखो, पिछले दौर को उठा के देखो। अल्लाह की कसम, सहाबा इकराम की नस्ल ऐसी नस्ल नजर आती है जिनकी जिंदगियों का एक एक लम्हा मकसद हयात के लिए वक्त था। ये ऐसी नस्लें थी, इन नस्लों से ताल्लुक रखने वाला एक एक शख्स मकसद के लिए जीता और मकसद के लिए मरता था। क्या था मकसद? सहाबा की जिंदगियों का मकसद क्या था? इस्लाम लाने के बाद उनकी जिंदगियों का, इस्लाम से पहले उनकी जिंदगियों का मकसद कुछ और था। फारूक आजम से किसी ने पूछा, उमर फारूक से, कि जमाने जाहिलियत में तो आप कहते थे कि मेरे पास 100 ऊंट हो, 100 ऊंटों का रेवड़ हो और आराम के साथ जिंदगी बसर करूं। उमर, आज तुम 22 लाख मरब्बा मील जमीन के हाकिम हो। आए उमर, आज तुम दुनिया के बादशाह हो, दुनिया के बादशाह आपके नाम से कर कांपते हैं। अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाहू अकबर। कहा हजरत उमर रो पड़े, कहा दोस्त, आज मेरी ख्वाहिश को लफ्जों के सांचे में नहीं डाला जा सकता। का फारूक, क्या बात है? का बात यह है कि आज उमर फारूक का मकसद यह है कि दुनिया का कोई चप्पा ऐसा न बचे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन न पहुंचा हो, दुनिया की कोई जगह ऐसी न बचे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का परचम न लहरा रहा हो। इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी जिंदगियों का मकसद बदल गया और मकसद हयात के लिए वक्त के ऐवानों में गए, वक्त के दरबारों में गए, यमीन वसार को ने देखा, उन्होंने न सर्दी को देखा न गर्मी को देखा, वक्त के दरबारों में पहुंच के शहंशाहों की आंखों में आंखें डाल के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहू अकबर। मैं हैरान हूं लोगों, हिजाज में पैदा होने वाले सहाबा, मक्के में पैदा होने वाले सहाबा, मदीने में पैदा होने वाले सहाबा, मैं हैरान हूं आज उनकी कब्रें हमें दुनिया के मशरिक और मगरिब में मिलती है, आज उनकी कब्रें दुनिया के किनारों पे मिलती है। अबू अय्यूब अंसारी को जानते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हिजरत करके मदीना आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेजबान है अबू अय्यूब अंसारी, मेजबान है। हाँ, उनकी विलादत हुई है मदीने में, पैदा हुए मदीने में, और आपको मालूम है आज उनकी कब्र कहां पे है? कुस्तुनतुनिया में, इस्तांबुल में दफन है। क्यों? कहां मदीना और कहां इस्तांबुल?
मैं आप लोगों से पूछता हूं नौजवानों, ईमानदारी के साथ मुझे बताइए, अबू अय्यूब अंसारी तो मदीने के रहने वाले थे, कुछ दुनिया में क्यों पहुंचे? एक तो अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत की, रब के अहकामात को कुछ दुनिया तक पहुंचाने के लिए गए थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात को कुछ दुनिया तक पहुंचाने के लिए गए थे। जो जिन चीजों पर उन्होंने अमल किया, दुनिया वालों तक वो चीजें पहुंचाने गए थे। क्या था मकसद अबू अय्यूब अंसारी का? क्यों गए थे दुनिया के किनारे पर, वहां पर शहीद हो गए? आइए एक सहाबी अपनी जिंदगी का मकसद बताते हैं। एक सहाबी है रबई बिन आमिर। जब ईरान की सरहदों में रबई बिन आमिर का घोड़ा दाखिल होने लगा, उस वक्त ईरान के सिपह सालार रुस्तम ने अपने दरबार को सजाया, दरबार को शान और शौकत के साथ सजाया, कीमती कालीनें बिछा दी, कीमती तकिए सजा दिए। क्यों? क्योंकि ये अरब के शहरा नशी बद्दू है, ये देहाती है, ये गरीब कौम है। इस तरह की कालीनों से इन लोगों का कभी वास्ता नहीं पड़ा, इस तरह के दरबार से शान और शौकत को इन लोगों ने कभी नहीं देखा। रुस्तम का ख्याल ये था कि अरब की ये बकरियां चराने वाले, अरब के ये बद्दू देहाती जब मेरी दरबार में आएंगे तो मरूद हो जाएंगे, डराने के लिए, क्योंकि जबानें गुम हो जाएगी, अपने मकसद हयात को भूल जाएंगे। सहाबा ईरान की सरहदों में दाखिल हो रहे हैं, ईरान के लोगों तक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पहुंचाने के लिए, और रुस्तम मरूद करना चाहता था सहाबा को। मुअर्रिखीन ने और रबई बिन आमिर की जुर्रत को सलाम किया है। रबई बिन आमिर जब रुस्तम के दरबार में दाखिल हुए, उनके हाथ में नेजा था। इनकी जिंदगी का मकसद देखिए, हाथ में उनके नेजा था। अल्लाह की कसम, एक दुबला पतला, मैंने कुछ ने कपड़े पहना हुआ, बड़ा गंदा हाल है, बड़ा गंदा बाल है। हाँ, जब रुस्तम के दरबार में दाखिल हुआ, रुस्तम, मुअर्रिखीन कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए भी उसकी कीमती कालीनों को नहीं देखा, उसकी शान और शौकत को नजरअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए, थोड़ी देर के लिए भी उसकी कीमती कालीनों को खाते में न लाते हुए, बल्कि मजाक उड़ाया उसकी कालीनों का। रबई बिन आमिर उसकी कालीनों में अपना नेजा चुभोते हुए, रुस्तम जो कालीनें बिछाई थी उसमें नेजा चुभोते हुए, उसका खिलवाड़ करते हुए जाके रुस्तम के सामने रबई बिन आमिर खड़े हो गए। हाँ, ईरान का बादशाह, ईरान का सिपह सालार, और ये मदीने का, मक्के का एक बद्दू देहाती, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गरीब साहबी, मेले कुचेले कपड़े पहने हुए, तौहीद की ताकत थी उनके पास। रुस्तम के दुनिया के सुपर प्रमुख के बादशाह के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़े हो गए। रुस्तम ने कहा रबई बिन आमिर से कि अरब के चारों तरफ तुम लोगों ने घोड़े दौड़ा रखे, चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा चाहते क्या हो? अरे चारों तरफ तुम लोगों के घोड़े दौड़ रहे हैं, तुम्हारी जिंदगियों का मकसद क्या है? सुनिए, इनकी जिंदगियों का मकसद क्या था? कसम रुस्तम, हमारी जिंदगियों का मकसद जिना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन जौरिल अदयान इला अदलिल इस्लाम व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिल आखिरह। ऐ रुस्तम, हमारी जिंदगियों का मकसद बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में लगाना है। हमारी जिंदगियों का मकसद लोगों को अदयान बातिला के जुल्म सितम से निकाल कर इस्लाम के इंसाफ के ज़ेरे साया लाना है। हमारी जिंदगियों का मकसद लोगों को दुनिया की तंगियों से निकाल कर आखिरत की खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए आए हैं। ये हमारी जिंदगियों का मकसद है। अल्लाहु अकबर। हाँ, अबू अय्यूब अंसारी भी इसी मकसद के लिए कुतुबुनिया गए थे, वही उनकी कब्र आबाद हो गई। और इस रास्ते में, मकसद के रास्ते में कोई भी चीज रुकावट न बन। अल्लाह अकबर। किसी चीज से उन लोगों ने कंप्रोमाइज न किया। जब मास बिन जबल घोड़े पे सवार है, मोहम्मद रसूलुल्लाह यमन में उनको दाई बना के भेज रहे हैं। अल्लाह अकबर। मास बिन जबल की किस्मत का क्या कहना, मोहम्मद रसूलुल्लाह घोड़े की नुकेल थाम के, मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदल चल रहे हैं और मास बिन जबल घोड़े पे है, और अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं कि दावत का काम कैसे करना है। कहा, तुम अहले किताब के पास जा रहे हो, अहले किताब के पास जा रहे हो, सबसे पहले उन्हें तौहीद की दावत देना। अगर वो ईमान को कबूल करते तो नमाज का हुक्म देना, नमाज अगर पढ़ने लगते तो ज़कात के बारे में बोलना, और बताना कि ये तुम्हारे अमीरों से लेकर तुम्हारे गरीबों में लौटा दी जाएगी ज़कात। आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मास बिन जबल की दुखती हुई रत पे हाथ रख दिया, जख्म दे दिया उनको। क्या का मालूम है? अल्लाह के रसूल ने मास बिन जबल से कहा, यमन तो जा रहे हो मास, लेकिन वापस आओगे तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। जब वापस आओगे तो मेरी कब्र पर से तुम्हारा गुजर होगा, यानी मेरे दुनिया मुख्तसर बचे हैं, मास अब मुझे जिंदा नहीं पाओगे। अल्लाह पर मास बिन जबल रो रहे हैं।
मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे माद बिन जबल, और जिस तरह अल्लाह के रसूल को मोहब्बत थी इसी तरह माद बिन जबल को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत थी। अब माद बिन जबल को दोस्तों सिर्फ शख्सियत से मोहब्बत होती, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात से मोहब्बत होती, दो घोड़े से उतर कर कदमों में गिर जाते कि अल्लाह की रसूल आपकी जिंदगी के बचे कुछ ही दिन है, मैं आपके साथ रहने दीजिए, आप इंतकाल कर जाएंगे फिर मैं यमन रवाना हो जाऊंगा। नहीं, तौहीद पहुंचाने जा रहे, उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन से मोहब्बत थी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिशन क्या था? लोगों को बंदों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी में लगाना। तौहीद मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिशन था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन से मोहब्बत थी। आंखों को आंखों में छुपा दिया, हाँ, और दिल पे पत्थर रखते हुए कहा ठीक अल्लाह के रसूल फिर अलविदा कहता हूं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंखों में आंसू को छुपा कर निकल जाते। क्यों? यमन वालों को तौहीद की दावत देनी है, मकसद के रास्ते में कोई चीज रुकावट बनी, सहाबा ने कभी कंप्रोमाइज न किया। लोगों, ये सहाबा की जिंदगियों का मकसद था। आज अपने गरीबानों में झांक के देखो आप लोग, अल्लाह की कसम हमारी अक्सरियत ऐसी है जिनकी आंखों पर गफलत के पर्दे पड़े हुए। लोगों, आज हम लोगों की मेजॉरिटी ऐसी है जो मकसद के लिए नहीं जी रहे, जैसा इनकी जीने का मकसद बताता है ये किसी टारगेट के लिए नहीं जी रहे। आज लोगों की मेजॉरिटी ऐसी है जो बेसमती की जिंदगी जी रहे, बेरारवी की जिंदगी जी रहे, जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे। और अब देखा इनाम ने फरमाया वही अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लुका सबीलिल्लाह, ऐ नबी आप जमीन की मेजॉरिटी के पीछे चलेंगे ना तो ये आपको भी गुमराह कर देंगे। अल्लाह ने कह दिया कि जमीन की मेजॉरिटी लोगों की अक्सरियत ऐसी है जो अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह का फजल है, ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह वक्तन फवक्तन उम्मत मुस्लिमा को बेदार करता रहता है। कैसे बेदार करता है? कभी ज़लज़लों के जरिए, कभी आंधियों के जरिए, कभी तूफानों के जरिए, कभी जालिम बादशाहों को मुसल्लत करके, कभी बीमारियां देखकर अल्लाह हमें झंझोड़ता है, अल्लाह हमें बेदार करता है, मुतनब्बे करना चाहता है। मेरे बंदो, दुनिया दारुल इकामा नहीं है, दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, दुनिया को हमेशा रहने की जगह मत बनाओ। ये बीमारियां, ये इल्म, ये जालिम बादशाह ये हमें बेदार करने के लिए अल्लाह आफतों को भेजता है। न दे इल्जाम हमदम दमाने के हवादिस को, न दे इल्जाम हमदम दमाने के हवादिस को। यही फितने तुझे हर गाम पर बेदार करते हैं, यही फितने हमें जगाते हैं, यही फितने हमें झंझोड़ते हैं। आज खास तौर पर मैं नौजवानों से मुखातब होकर कहता हूं, क्यों मस्जिद में पांचों वक्त की नमाजों के लिए आइए, चंद उधेड़ उम्र के बूढ़े आपको मस्जिदों के कोनों में नजर आएंगे। नौजवान मस्जिदों से दूर है, हमारे नौजवान हमारा बिगड़ चुका है, नौजवान मकसद हयात से हटा हुआ है हमारा नौजवान। आज नौजवानों की जवानियां जाए हो रही है होटलों में, नौजवानों की जवानियां जाए हो रही है पार्कों में, आज नौजवानों की जवानियां जाए हो रही है गली कोचों में। देखिए जवान का रात में मामूल क्या होता है मालूम है? शाम को प्लानिंग बनाते हैं नौजवान, हमारी जवानियां कैसे जाए हो रही है कि होटल में जमा होना है, किसी गली नुक्कड़ पे जमा होना है, किसी पार्क में जमा होना। क्यों? रात भर पार्टी चलेगी, रात भर सिगरेट नोशी चलेगी, रात भर शराब और गांजा चलेगा, रात भर चाय चलेगी। अल्लाह ऊपर, जिन जवानों को कौमों की लीडरशिप करनी चाहिए, जिस जवानों को कौमों का कायद और लीडर बन के कौम को लेकर चलना चाहिए, जिस जवानों को इंसानों की खिदमत करना चाहिए, जिस जवानी में मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, जिस जवानी में दीन की खिदमत करना चाहिए, आज ये जवान होटलों में अपनी जिंदगियों को कैसे बर्बाद कर रहा है, अपनी जवानी को सिगरेट और गांजे और ड्रग्स के पीछे कैसे बर्बाद कर रहा है। हाय, कब मालूम है घरों को वापस कब आते हैं? इन जवानियों को रोड पे बर्बाद करके घरों को लौटेंगे रात को 2:30 बजे 3 बजे। हाय, अल्लाह महाली की याद आ गई कि हुए इस कदर मुहद्दब के घर का कभी मुंह न देखा, हुए इस कदर मुहद्दब के घर का कभी मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे जाकर अस्पतालों में। हाँ, और आज नौजवान अपने आप को बनाने और संवारने में लगा हुआ है। हाँ, नौजवान आज रवड़ी दिखना चाहता है, गुंडा दिखना चाहता है, मुस्लिम नौजवान। हाय, कटिंग उनकी देखिए, बालों की कटिंग, इनका कपड़ा देखिए कि अच्छे से अच्छा कपड़ा हो, चेहरा खूबसूरत हो, जिम करके बॉडी बनाता है, और उसके बाद आप उसका जूता देखिए, जूते के बाद उसका महंगा मोबाइल देखिए, और आज बाइक में भी इसको बुलेट चाहिए। बुलेट जब मोहल्ले में दाखिल होता है तो तमाम लोग बुलेट की तरफ मुतवज्जो होते हैं। कान में बाली है, उसके नौजवान के कान में बाली है,
बुलेट है, सिगरेट हाथ के मुंह में है और इस तरह दाखिल होता है कि लगो कि कोई रबड़ी आ रहा है, कोई गुंडा आ रहा है। अल्लाह अकबर, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरी काली है ईरानी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरी काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। जवानों, इन जवानों को देखिए जो ऊपर से अपने आप को बनाते और सवारते हैं ना, अंदर से इनके दिल खोखले हो चुके हैं, इनके दिल मुर्दा और बीमार हो चुके हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज में कितनी सच्चाई है। लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत पिछली उम्मतों यानी यहूद और नसारा के रविश पे चलेगी। आज देखिए हम यहूदियों की रविश को अपना रहे हैं कि नहीं। अच्छी खासी पैंट हमारा नौजवान टखनों से फाड़ लेता है, अच्छी खासी पैंट हो टखनों से तोड़ देता है, क्यों? कहता है कि फैशन है। हाँ, क्रिकेट या फुटबॉल के किसी खिलाड़ी ने अजीब तरह बालों की कटिंग करवाई थी, हमारा नौजवान, हमारे मोहल्ले के मुस्लिम नौजवान वो कटिंग करवा के मोहल्ले में खुलेआम घूम रहे थे। वो भी बंदर और ये भी बंदर दिख रहे थे। नौजवानों, मैं आप लोगों से कहता हूं, लोग आपके चेहरों को नहीं देखते। आज इंसान अपने जिस्म से खूबसूरत नहीं कहलाता, इंसान अपने किरदार से खूबसूरत कहलाता है, इंसान अपने अखलाक से खूबसूरत कहलाता है। लोग आपकी बॉडी, आपके बुजुर्ग, आपके माँ बाप, आपकी कौम के लोग आपकी बॉडी को नहीं देखते, आपके चेहरे की खूबसूरती को नहीं देखते, आपके किरदार को देखते, आपके अखलाक को देखते। नौजवानों, अपने अखलाक को संवारो, अपनी जवानियों की हिफाजत करो और देखो कि तुम्हारे दोस्त कौन है, किन जवानों को तुम लोगों ने दोस्त बनाया है। ये जो बिगड़ते हैं ना ज्यादातर नौजवान, जिना की लत कब लगती है, शराब और नशे की लत कब लगती है। अल्लाह की कसम, जब हमारे नौजवान गलत सोहबतों के हद पे चढ़ जाते हैं। हाँ, नेक घराने का लड़का नौजवान था, नेक घराने का, संजीदा, सही उल अकीदा, नमाजी, दीनदार था, लेकिन गलत नौजवान से दोस्ती कर ली। उसने शराब भी सिखा दिया, उसने सिगरेट भी सिखा दिया, उसने जिना भी इसको सिखा दिया। नौजवानों, ज्यादातर इंसान सोहबतों से बिगड़ता है, सोहबतों से। कितने आप सोचो कि मेरे दो दोस्त हैं, एक मुझे रातों को बुराई के लिए फोन करता है, क्या बुराई कर, और एक ऐसा नौजवान है जो मुझे नमाज फजर की आजान होती है तो नमाज के लिए फोन करता है। दोनों जवानों में, दोनों दोस्तों में फर्क है। ये जो दोस्त है ना, नमाज फजर के लिए मुझे फोन करके बुलाता है, कल मैदान महशर में ऐसे दोस्त में मैं रश करूंगा कि बने इससे दोस्ती की मैंने। और जो रातों में मुझे गुनाहों के लिए फोन करता है ना, कल कयामत के दिन मैदान महशर में मैं अपनी उंगलियों को चबाऊंगा और चीखूंगा कि काश फला को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझे गुमराह कर दिया, उसने मुझे मस्जिदों से दूर कर दिया, जितनी जिना की, नशे की लत उसकी वजह से मुझ में पड़ी है। अल्लाह अकबर। नौजवानों, कभी हम इतने नेक नहीं होते। नेक लोगों की दोस्ती की वजह से अल्लाह हमारे दर्जात को बुलंद कर देता। आपको मालूम है, अमर बिन मैमून एक बहुत बड़े ताबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माद बिन जबल को यमन में भेजा। अमर बिन मैमून कहते हैं, हाय माद बिन जबल का अखलाक, उनकी नेकी, उनका तकवा, आखिरत तलबी मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने माद से दोस्ती कर ली, माद बिन जबल से, और इतनी दोस्ती की माद से कभी जुदा न हुआ, क्योंकि नेक आदमी मिल गया मुझे। माद बिन जबल कौन हो सकता है? जलील कदर साहबी। माद बिन जबल जब तक यमन में रहे, अमर बिन मैमून कहते हैं उनके साथ लगा रहा। माद ने जब यमन को छोड़कर शाम की तरफ गए, मैं माद के पीछे अपने वतन को छोड़ दिया दोस्ती के लिए, कि माद जैसा इंसान छूट गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे उससे आखिरत तक भी सीखनी है और अखलाक सीखना। मैं चला गया शाम, यहां तक कि माद बिन जबल का इंतकाल हुआ तो मैंने अपने हाथों से अपने दोस्त माद बिन जबल को दफन किया। अमर बिन मैमून कहते हैं, माद बिन जबल के बाद मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से दोस्ती की। हाँ, हमारे असलाफ थे ना, दुआ करते थे अल्लाह हमें नेक दोस्त अता कर दे। अलकमा जब शाम में दाखिल होते ताबी तो क्या कहते, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, आय अल्लाह मुझे नेक आदमी की सोहबत अता कर, नेक आदमी की। कहते शाम के अंदर गया तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सोहबत का शर्फ अल्लाह ने मुझे अता किया। कभी हम इतने नौजवान और नेक नहीं होते। नेक लोगों की सोहबत की वजह से अल्लाह कल हमारे दर्जात को बुलंद करेगा। सूरह कहफ पढ़ी आपने, जुमा है, सूरह कहफ में आप एक जुमले से गुजरते होंगे, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। अल्लाह ने फरमाया वो असहाबे कहफ जो गार में लेट गए थे, सो गए थे अपने ईमान को बचाने के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया एक कुत्ता था उनके साथ जो गार के मुंह पर उनकी हिफाजत के लिए पैर बिछाए खड़ा हुआ था। कुत्ता उनके साथ। किसी को गाली देने होती है तो क्या कहते हैं, कुत्ता इतना हकीम जानवर है, इतना हकीम लफ्ज़ है कि गाली के लिए कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस कुत्ते का कुरान में क्यों जिक्र किया मालूम है? नेक लोगों की सोहबत की वजह से। किनकी
تیاری کر رہا تھا. یہ کتا کس کی حفاظت کر رہا تھا؟ موحد بندوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی جو توحید کی حفاظت کے لیے چھپے تھے. اللہ اکبر. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. قیامت تک آنے والی نسلیں اس کتے کے ذکر کو پڑھتی رہے گی. لوگوں جب نیک آدمی کی صحبت سے کتے کی قسمت سنور سکتی ہے تو ہم گنہگار اگر نیک نوجوانوں کو اپنا دوست بنا لیں انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. نوجوانوں اپنی جوانیوں کی حفاظت کرو. ہاں اپنی تم زندگی کے جس مرحلے میں آنا اس مرحلے کی بڑی قیمت ہے. نوجوانوں تمہارے سجدوں کی بڑی قیمت ہے. سجدہ کو یہ برے انسان بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے اور ان کے سجدے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کے رکوع کی بڑی قیمت ہے. سباتن یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. شاب نشا فی عبادت اللہ، شاب نشا فی عبادت اللہ. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا. اس میں ایک وہ جوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو بندگی میں، رب کی بندگی میں گزارا، دین کی خدمت میں گزارا، انسانوں کی خدمت میں گزارا، دین کی نشر و اشاعت میں گزارا. اس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، مستانی نہیں بنایا، لہو لہو نہیں گزارا. دوسرے جوان جب گاؤں کی چوراہوں پر دوسروں کی بہو بیٹیوں پر آوازہ کرتے تھے یہ جوان مسجدوں میں آ کے عبادت کیا کرتا تھا. فرشتوں سے اللہ کہے گا لاؤ لاؤ اس جوان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لاؤ. جوانوں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ ہاں آج نوجوان کس کے فین ہے؟ کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ ان کا لوگ کھولیے فون کا، اسکرین پہ جس کھلاڑی کی تصویر آتی ہے ان کے اسکرین اسٹیٹس پہ جو واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے وہاں جس ہیرو کی تصویر ہے یہ نوجوان اسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے، اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. نوجوانوں آپ کے آئیڈیل حضرت عمر ہے، آپ کے آئیڈیل عقبہ بن نافع ہے، آپ کے آئیڈیل ربیع بن عامر ہے، عقبہ بن نافع. اللہ اکبر. حضرت عثمان کی اسلام ہے، گورنر حضرت عثمان کے ہے. ملکوں کو فتح کرتے ہوئے نکلتے ہیں نا، سارے ملکوں پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، ساری بستیوں اور گاؤں کو فتح کر دیا. سامنے جب دریا آ گیا تو عقبہ بن نافع دریا کے سامنے رک گئے اور دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیے. عقبہ بن نافع نے گھوڑے سے اترے، سر سجدے میں رکھا اور کہا اللہ مجھے پتا ہو جتنی بستیاں جتنے ملک مجھ کو نظر آئے تمام ملکوں پہ محمد رسول اللہ کے دین کا پرچم لہرا دیا. اے اللہ تمام ملک والوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آگے سمندر آ گیا، کہاں جاؤں اللہ کہاں جاؤں؟ مجھے پتا ہو ان سمندروں کے پاس بھی کوئی تیری مخلوق ہے، تیری عزت و جلال کی قسم ان گھوڑوں کو بھی سمندر میں ڈال دوں، تو ان کو کشتی بنا دے اور تب تلک چلوں جب تلک زمین کا ٹکڑا نہ بچے، اور اس وقت روکوں جب محمد رسول اللہ کے دین کا پرچم زمین کے ٹکڑے پہ لہرا لوں. اللہ اقبال نے کہا تھا کر نہ سکتے تھے گر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق پہ سرکت ہوا تو بگڑ جاتے تھے، کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کس کے بارے میں کہا تھا؟ عقبہ بن نافع کے بارے میں اللہ اقبال نے کہا تھا نوجوانوں اپنے آپ کو سنوارو، اپنے دوستوں کو بدلو، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، عمر کے مرحلے کی دوستوں حفاظت کرو. جوانوں جب آپ لوگوں کی بند ہوگی، آنکھیں بند ہوگی نا، یہ خوبصورت جسم ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ باڈی آپ لوگوں کی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ خوبصورت دکھنے والے چہرے ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان چہروں کو بھی زوال آنا ہے. ہاں یہ جو خوبصورت جسم ہے نا جن میں جا جا کے باڈی بناتا ہوں ایک دن آئے گا اس باڈی کو قبر میں کیڑے کھائیں گے، قبر میں کیڑے کھائیں گے. آنکھیں بند ہوگی نا نوجوانوں، آپ لوگوں کے سامنے 2 منزلیں ہیں، جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. ہائے جنت مجھے چین کے ساتھ دیکھنے نہیں دیتی کیونکہ اللہ نے جنت میں جو محلات تیار کیے ان محلات کو پانے کے لیے مجھے نمازیں پڑھنی ہوگی، مجھے دین کی خدمت کرنی ہوگی، اپنے آرام کی قربانی، اپنی عید کی قربانی، اپنے ارمان و خوشیوں کی قربانی مجھے دنیا میں دینی ہوگی، تب جا کے اللہ جنت کے محلات مجھے دے گا. اور جہنم اللہ اکبر ما رأیت مثل النار لا محاربها. امام کائنات نے فرمایا یہ لوگ آرام کے ساتھ کیسے سو رہے ہیں، یہ سکون کے ساتھ کیسے سو رہے ہیں، ان کو تو راتوں میں اٹھ کے اپنے گناہوں کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے. کیوں؟ ما رأیت مثل النار لا محاربها، کیونکہ اس کے سامنے جہنم منہ کھول کے کھڑی ہے، ہمارے جیسے جہنم، ہمارے آگے جہنم جیسی بات یہ ہے. لوگوں اس کی کیفیت بھی ہوگی یؤتیٰ بالنار یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کی اس حالت میں لایا جائے گا
70,000 उसकी लगामें और एक एक लगाम को पकड़ने वाले 70,000 फरिश्ते। नौजवानों, ये जहन्नम की आग, उसकी लपेट हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। इस जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए खास कर लीजिए। रब्बुल आलमीन इन मस्जिदों को आबाद कर लीजिए, थोड़ी सी लोगों की खिदमत कर लीजिए। याद रखिए, मौत वही अच्छी जो सजदे की हालत में आए, नेकियां करते हुए आए, रब को राजी करते हुए आए। आखिरी वाकया है नौजवानों को बेदार करने के लिए, इंशाल्लाह इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूं। एक दोस्तों पर्चा निकलता है सऊदी अरब से, अर्राबिता आलम इस्लामी, उस पर्चे में एक नौजवान ने एक वाकया दिया कि मैं सिर्फ नाम का मुसलमान था, नौजवान था, और मेरा शुमार था गोताखोरों की टीम से। समंदर में गोता लगाना, सीप और मोती तलाश करना, सरकारी नौकरी थी, अच्छी खासी मेरी तनख्वाह थी। जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं याद है कि मैं जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी है। सिर्फ नाम का मुसलमान और मुसलमानों के घर में पैदा हुआ। ये नौजवान बोल रहा है कि एक मर्तबा में गोताखोरी की मुहिम पे गया। वो हमारी जो सांस लेने की किट होती है, ऑक्सीजन की किट, वो लेके निकला अपनी टीम के साथ। कहते हैं कि मैंने भी अपनी टीम के साथ समंदर में गोता लगाया। जब मैं अंदर चला गया, वो ऑक्सीजन की किट मेरी पीठ पे बंधी हुई थी। वो जिससे मैं सांस लेता था ना, वो नली जिससे सांस लेता था, उसके कनेक्शन में कुछ खराबी आ गई, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। क्यों? वो नली कहीं से कट गई, पत्थर से टकरा के कहीं से लीक हो गई और पानी उसकी सांस के नली के अंदर जाने लगा। उस नौजवान को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। नौजवानों, आप लोगों के लिए बता रहा हूं, खुदारा होश में अपनी आंखें खोलो। इस नौजवान का वाकया सुनिए। कहते हैं कि मेरे दोस्त लोग, जो मेरी टीम के लोग थे, दूर दूर तक सीट तलाश कर रहे थे और मैं भी अपनी जगह पे था। मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। जब पानी नली में भरने लगा, उस वक्त समंदर की तह में मैं अपनी पिछली जिंदगी को सोच कर रो रहा था कि मैंने तो जिंदगी में कभी नमाज भी नहीं पढ़ी, मैं तो सिर्फ नाम का मुसलमान हूं। कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर अल्लाह का सामना करूंगा? कब्र में मेरे साथ क्या होगा? पिछली जिंदगियों के गुनाहों को सोचकर रोने लगा। मैं एक एक सेकंड में अपनी जिंदगी के पिछले कई सालों को सोचकर रोने लगा। फिर समंदर की तह में तौबा करने लगा। जब मौत सामने आ गई, जब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, कहते उस वक्त समंदर की तह में मैं तौबा करने लगा। फिर जब ज्यादा मुझे दिक्कत होने लगी सांस लेने में, तो मैंने कहा चलो कलमा पढ़ लेता हूँ। अश्क कहता मुंह में पानी भर जाता, अश्कों की पूरी नली में पानी भर चुका था। अश्क कहता पानी मेरे मुंह को दबा देता, मुंह में पानी भर जाता, मतलब कलमा भी नसीब नहीं हो रहा था मुझे, कलमा भी नहीं पढ़ रहा था। इसी खैर अल्लाह ने जिंदगी लिखी थी, इसी कश्मकश में बेहोश हो गया। जब उसकी बॉडी लड़खड़ाने लगी समंदर की तह में, उसके दोस्तों ने देखा, उसे पकड़कर बाहर लाए। बेहोश था, होश आया, किनारे पर जमीन पर खुश्की पर अपने आप को जिंदा पाया ना, किट निकाल कर सजदे में गिर गया। वो सांस लेने की किट फेंक कर सजदे में गिर गया। सुबहान रब्बियल आला कहने लगा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अय अल्लाह, तू जान नहीं सकता था समंदर की तह में, तूने जो जिंदगी की है, तूने जो दोबारा मुझे जिंदगी की है, अय अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुझसे वादा करता हूं अब तेरी कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। वहीं से उठा, मस्जिद में अपने गुनाहों पर तौबा की, वहीं से मैं नमाज़ें पढ़ने लगा। जब अच्छी तरह तौबा कर ली, अच्छा खासा नेक नमाजी बन गया, उसके बाद वही कीट ली मैंने अपनी पुरानी, वही कीट ली। फिर समंदर की तह में गया, वहां गया जहां पर मेरी नली की कनेक्शन में खराबी आई थी, जहां अल्लाह ने मुझे सहारा दिया था, संभाला था। वहीं समंदर की उस तह में जाकर दोबारा मैंने सजदा किया। नौजवान कह रहा है, जवानों क्या कह रहा है कि समंदर की तह में जाकर दोबारा मैंने उसी जगह पर सजदा किया कि सुबहान रब्बियल आला। यहीं पर जब मेरी बॉडी लड़खड़ाई थी, जहां लड़खड़ाया था, उस जात ने मुझे सहारा दिया था। अब उसी के लिए उसी जगह पर सजदा करने आया हूं, उसी जगह पर जाकर अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगा। अब समंदर से निकलने के बाद वो क्या कहते हैं मालूम है? वो कहता है, लोगों मुझे यकीन है आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आज तक समंदर की इतनी गहराई में जाकर किसी ने सजदा नहीं किया होगा जिस गहराई में मैंने सजदा किया। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि समंदर की वो गहराई मैदान महशर में मेरे लिए गवाही देगी और अल्लाह मुझे निजात दे देगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। नौजवानों अपने आप को सवार लो। हाँ, दुआ करता हूँ बारीना से, रब्बुल आलमीन मकसद हयात के लिए जीने की तौफीक दे। अल्लाह गुनाहों के कामों से बचने की तौफीक दे। अल्लाह नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक दे। आय अल्लाह हमारे नौजवान जो बिगड़े हैं नशे की लानत में, आय अल्लाह फसील में, आय अल्लाह उन्हें राह रास्त देगा।
राह रास्त ला, इन मस्जिदों को आबाद करने वाला बना, दीन की नशो इशात करने वाला बना, कौम की खिदमत करने वाला बना। इन नौजवानों को जो अपनी जवानी को जाय कर रहे गली कोचों में, आए अल्लाह इनको कौम का खिदमतगार बना, आए अल्लाह इनको दीन का मुबल्लिग और दीन का दाई बना। आए अल्लाह आखिर में तौहीद को झोली में रखकर तुझसे दुआ करते हैं कि जब तक अल्लाह दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम पे, जब हमारा खातिमा हो, कुरान पढ़ते हुए हमारी रूह निकले या सजदे में हमारी रूह निकले।